research. We are doing research not only for researchers, we are doing research for individuals, farmers, for research workers, students, and then commercial cases. So a very good afternoon to all present, and it's my proud privilege to be here. And I'll present the work we have done at my place or what I have done. It's a one-way process. You can stop me, you can interrupt me anytime. आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, आपको कोई चीज़ लगता है कि मेरे को और समझना है, so you are most welcome. Side by side you can interrupt me anytime. आगे जाने से पहले मैं simply I'll tell you one thing कि this presentation is not for disseminating knowledge. ये सिर्फ एक dissemination of knowledge के लिए नहीं है. मैं यहाँ पे आपको knowledge देने नहीं आया हूँ मैं. I am here to take this opportunity as a earning source. Whosoever you are. आप एक 10 साल के घर आपके घर में एक 10 साल का बच्चा है. You are married couple. You are a student. You are professionals. You are seniors. I am giving you one opportunity. That opportunity means, if you are having a room of 15 feet long, 30 feet long, 30 feet wide, and 15 feet high, you can earn 4 to 6 lakh rupees per month. आप रिकॉर्ड कर सकते हो. I mean it. I really mean it. मैं लेक्चर देने नहीं आया हूँ. I am a grassroots level worker. अगर आप मेरे नॉलेज में से कुछ ले सकते हैं, आपके स्टूडेंट्स, you can do something, you can do better research work. आप कमर्शलाइज बेसिस पे जाना चाहते हैं, being an individual you want to earn money, I am here to help you out. Thank you very much, sir. Yesterday we came along with Dr. Sarban, and then today also we were discussing also कि हम लोगों का आपका जो lecture है, we have to go through. So this is the time I have to present my research work. Tanzus Mission Punjab. So simply they told me, the joint director sir told me, यार ये क्या चीज़ लेके आ गए आप, ये तो हर कोई बंदा, everyone is knowing क्या hydroponics है, क्या aquaponics है. But don't believe on Facebook University. That is fake. I am going to tell you. इतना common भी नहीं है, इतना easy भी नहीं है ये. So after giving the introduction, I will cover about the crop production and the hydroponic system, and then the rest of the thing, all of the thing that is purely dependent upon the nutrition solution. जो उन्होंने मेरे से कहा था कि ये हर चीज़, everything is available. आप एक नहीं 1000 आप YouTube के कोई से भी चैनल देख लो, कोई सा भी आप XYZ थ्रेड देख लो, कोई सा भी देख लो, आप they will tell you कि यार आप 1 करोड़पति बन जाओगे, 10 करोड़पति बन जाओगे, hardly matters. But they never tell you about the solution. And this is the backbone of, क्योंकि इसमें और कुछ सवाल नहीं है यहाँ पे. So your plant growth and your yield, that will purely depend upon the nutrient solution. And then aquaponics, that is our upcoming field is there. We are conducting some research. Still, I'm telling you, जो भी मैं बताऊँगा मैं, still we are under process. अभी मैं किसी चीज़ में expert नहीं हूँ मैं अभी किसी चीज़ के बारे में आपको भी नहीं बोल सकता कि this is the only thing, you will do it and then you will become millionaire. Not like that. But my main aim is not only academics. My main aim to switch over from academics to production. Then conclusion. See, if you are talking about the hydroponics is misconception है कि hydroponics का कुछ मतलब नहीं पता. Hydro and ponics, working with water, that's all. It's not styleless. Hydroponic means hydro and ponics. Hydro, water, ponics to work with. So hydroponics, aeroponics, aquaponics, everything that will be part of hydroponics this way or that way. Is clear to you what is hydroponics? When you are talking about northern India, we are not having deep water sources like lakes or seashores. So this deep water culture we cannot adopt, but this can be adopted very well in South Indian conditions, where the large water bodies are available or the big lake is available. So you can go for it.
The nutrient film technique, this is the thing, everywhere you can adopt it. Ebb and flow, sometimes it is also known as the flood and drain system. If you are using drip irrigation system, and number of things are there, at last the controlled environment. This is a highly invested thing, and you have to have a big chamber, all the environmental conditions, whether it's a relative humidity, carbon dioxide content, oxygen content, temperature, everything will be maintained. Condition, nutrient film technique is there, flood and drain is there, high pressure automation is there, that is we are using for aeroponics. And then aeroponics can be aerohydroponics. Is a mixture क्यों बोल रहा हूँ पता आपको? I don't know the market at Srinagar कि यहाँ पे how much chemical they are using. I don't know exactly. But if you are talking about the metros, whether it's a Mumbai or it's a Delhi or even Ludhiana also, simply अगर वो पत्ते मुरझा भी जाते हैं ना, कोई chemical आया हो उसको डाल देंगे दोबारा वो खिल जाता था. So it would be like the farm fresh vegetable. वो 10 दिन पुरानी भी होगी, and that is a highly cancerous, that particular agent. So leafy vegetable इसलिए आता है. And leafy vegetable, how far you can store? कितने दिन के लिए इसकी शेल्फ लाइफ नहीं है इसकी. आज कल आपको खत्म करना पड़ेगा. पालक ही ले लो आप, कुछ मत लो. 3 कट्टे मीन्स यूरिया का, यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, बैग्स. 1 bag, 2 bags, 3 bags, 4 bags, lavishly you are doing. कुछ नहीं हो रहा है उससे. Simply आप अपने माइक्रोफ्लोरा को, माइक्रो एनवायरमेंट को, अपने सॉइल को आप खराब कर रहे हो. When you are dealing with drip irrigation system and fertigation, you are reducing kgs to grams. आप कोई फार्मर देखो जरा पूछो आप उसको बोल रहा है कैसे आपने डाला, he will tell you I have given 750 grams, आधा किलो डाला है मैंने या 500 grams डाला है, like that. So when you are talking about soil as a medium, conventional methods, you are putting all the macro and micros in kgs. Conventional, along with drip irrigation system, you have cut down the kgs into grams. When you are dealing with the same thing, drip irrigation system without soil as a medium means hydroponics. It's hydroponics. Can you tell me in what units we are putting this nutrient solution? Milligrams? Milli and micrograms. Your question, this is the answer. Other way I have given the answer. That's 100% down there. आपको किलोग्राम 10 to the power 3, मिली 10 to the power -3, उससे भी नीचे चलेगा 10 to the power -6. Your question is valid, but try to understand my answer also. Any doubt? Anything you want to discuss? ठीक है? सर एक चीज है ना, जैसे हम केजीस में डालें या किसी में भी डालें, वो तो सॉइल में चला जाता है, लेकिन अपडेट जो प्लांट का मैंने आपको एक वर्ड कहा था, we are deteriorating the health of the soil. Yes, we are deteriorating, of course, but the product, whether it is organic or inorganic, will not depend on that, no? Whether you are growing it. Inorganic, it's not organic. It is not organic. No, It's inorganic. We are using synthetic. So how come it would be the organic? No, it will not But be organic. the overall percentage, even in not in grams, we are giving in micrograms and milligrams. Whatsoever is needed, exactly. There is nothing. When you are putting anything as soil working as a bank, as a reservoir, it is storing, keep on storing, it is releasing, whether it's a fast release or it's a slow release. It's the nature of the soil. But where is the soil? If there is no soil, you have to keep on feeding, keep on feeding, keep on feeding. It's a 24/7. It's not a 1 or twice in a week. It's a 24/7. You have to keep on feeding. लेकिन हम थोड़ा थोड़ा भी फीड करें तो वो थोड़ा थोड़ा भी फिर तो काफी ज्यादा हो जाएगा. अगर आप बोलते हैं हम आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ. Exactly. मेरे पास एक सिस्टम है. इस रूम के लिए सिस्टम है मेरा पूरा लगा हुआ. 7 स्टेप्स लगे हुए हैं इसमें. इसमें मेरे कम से कम एक बार में 400-500 प्लांट आ जाएगा. ठीक है. I'll prepare a stock solution, and from there I'll take from stock solution I'll take the nutrient. 1, 2, 3, 4, 5, 7 times जितने दिन के लिए लिए. एक बार में आपने लिया, you have filled a tank. 24/7 up. You are not adding continuously. There are 4 stages. First is initial stage. Then second is a development stage.
Third one is a mid-season stage. Fourth one is a late-season stage. If you have gone through the crop coefficient curve, there are 4 stages. So you have to change the ratios. But it doesn't mean that every time you will keep on putting some fertilizers. आपका molar solution जो बना हुआ है, stock solution बना हुआ है, that will remain same. But in initial stage, it will last for 10 to 15 days. 100 लीटर के इसमें डाल दिया आपने, वो 100 लीटर आपका 15 दिन चलेगा, 2 हफ्ता चलेगा, 1 हफ्ते से ज़्यादा चलेगा. आपने 100 लीटर डाला था, उसकी EC pH सब मेंटेन करनी पड़ती है आपको. EC should be 1.2 to 1.5. उसकी जो pH है, that should be 5.5 to 6.5. TDS जो है less than 1000 डेसिसिमल क्या उसके आसपास ले सकते हो. ये आपकी सारी की सारी चीज आ गई. You have to keep it in range. आपने 100 लीटर जो पानी डाला था, वो स्टॉक सोल्यूशन बनाया था, वो 15 दिन चला, 12 दिन चला. आपके 100 लीटर में से 70 लीटर खत्म हुए. What you will do with 30 liters? You have to throw it away. उसको आप दूसरी बार ही यूज कर सकते हैं. Then second time, you will refill the tank. That will go for maybe 10 days, maybe 8 days. क्योंकि इस समय में डेवलपमेंट स्टेज है, मैक्सिमम एक्सपेक्ट करेगा. वो आपका पानी 70 लीटर 80 लीटर खाली हो जाएगा 1 हफ्ते में या 1.5 हफ्ते में. आपने न्यूट्रिएंट तो नहीं चेंज किया ना. 10 दिन तक आपका एक जो है माइक्रोग्राम का, वो 10 दिन तक 11 दिन तक चलेगा. Then how come cumulatively it is going up? आप जोड़ते भी जाओगे ना, तब भी नहीं जुड़ने वाला. आप अगर ना क्लियर हो तो आई विल टेक द सेकंड एग्जांपल. इज क्लियर? For deep water culture, you have to have a reservoir or floating raft. Floating raft जिसके ऊपर में आपको चीज लगाओगे, then air pumps is needed क्योंकि आपका stagnant water है. Stagnant water है, BOD का affect करेगा just to maintain, just to reduce the demand of oxygen, COD और BOD. आपको you have to keep on recirculating it. एयरलाइन आ गई, वाटर लाइन आ गया, बबलर आ गया जो आपके एक्वेरियम्स होते हैं. So what we are doing? उसको we are adding oxygen, so that is required for that. Now, one chapter is completed. That was something related with the deep water culture. Now, hydroponics with drip irrigation system. In our field, we started with the turfs. That was filled with the coco peat, perlite, vermiculite. There was some mixtures were there. Now it is around 5 years back. From these turfs, we came up with new technique, grow bags. Again, grow bags were filled with same thing. It may be a coco peat, it may be a coco peat, perlite, vermiculite, and a combination of it. These grow bags are of PVC. Pardon sir? These are PVC grow bags. Polythene. Polythene. यही आते ही नहीं है. उसके बाद हम लोगों ने ये हम लोगों का प्रोटोटाइप था. Then we customize it. Customize में आपको ये 2 चीजें लगी हुई हैं. If you are having a media, मैं आपको मीडिया आगे भी बताऊंगा. I'll tell you about the media. If you are having a media that is related with the coco peat, so कोई vegetable उसमें बहुत बढ़िया ग्रो करेगी. But when you are going for a flower like orchid, आपका एक भी प्लांट नहीं चलेगा. आपको मैं आगे भी बताऊंगा मैं. क्यों? क्योंकि its porosity, the requirement of air during its growth period, that would be different. So you have to change the media itself. So there are so many things. In hydroponics, you cannot use a single media for growing all the things. Make it sure. फिर उसके बाद में we were using single stack gripper, we were using 2-way stack gripper, then we came up with the 4-way stack grippers. Then recently we are using this ring grippers. ये ring grippers है, ये 4-way gripper है. ये 4-way लगा हुआ है. एक टेक आउट पॉइंट से 4 वे में जाके 4 जगह पॉट को करता है, इरिगेट करता है. Sometime you are over irrigating, sometime you are under irrigating. So recently from this last season itself, we are using this ring grippers, and its efficiency is very high, really very high.
if you are using it for vegetables, if you are using it for floriculture, if you are using it for fruit. At initial stages, this is really a good technique. Not only this, as I told you, when you are attending this program, you think of some commercialization. In your area, you can grow anything which is suitable. Maybe vanilla, maybe black pepper, maybe any other herbal or any species that is related with the spices. मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मैं लुधियाना में we are growing this white orchids. हम लोगों ने सिक्किम से प्लांट लिया था and we are working hard. Management cost is coming really high for maintaining the environment at Ludhiana to produce the orchids. You are really blessed with the environmental conditions. यहाँ पे आप पंखा भी मत चलाओ, आपको you will fetch your good money, handsome money. एक जो उसका स्टिक है सीजन में वो 60 रुपए 70 रुपए का बिकता है, ऑफ सीजन में 150 रुपए का बिकता है. आपको मार्केट सर्च आउट करना पड़ेगा एंड सडनली वी आर सिटिंग एट लुधियाना, वी विल हेल्प यू आउट कि आप मार्केट कहाँ से देख सकते हैं. आपके आराम से इसी कमरे के अंदर में कम से कम 700-800 दिस प्लांट इस कमरे के अंदर लग जाएगा इतनी सी जगह में. सो थिंक ऑफ दैट कि आप कैसे कर सकते हो. सो दिस इज समथिंग वी exactly this was some setup we were having for vanilla crop. लेकिन वनीला लुधियाने में थोड़ी ठंड एक बार पड़ती है और एक बार एकदम गर्मी पड़ती है. यहाँ पे एक्सट्रीम समर्स नहीं है आपके में, हमारे में एक्सट्रीम समर्स भी हैं और विंटर्स में फील्ड टेम्परेचर दैट इज गोइंग अप टू 0 सब 0 -1 -2 -3. So this plant was not successful, that we were not successful to grow vanilla at our place. Another thing, देखिए this is मगज कद्दू जो आपके इसके ड्राई फ्रूट्स में आता है, आपका जो घी वगैरह में डलते हैं. सो दिस इज रियली लुधियाना दे आर सेलिंग एट कॉस्ट ऑफ 6,000 to 7,000 रुपीज केजी मगज. तो मगज कद्दू जो है ये हर कद्दू से नहीं निकलता, ये पीए की वैरायटी है. इसमें थोड़ा आपको यू हैव टू वर्क कि आपको थोड़ा पॉलिनेशन के लिए आपको काम करना पड़ेगा. इफ यू आर ग्रोइंग इनसाइड, अगर आप बाहर ग्रो कर रहे हो आपको इजीली यू कैन गेट, आपको लेकिन इस इतने लेवल तक पकना देना पड़ेगा आपको. उसको थोड़ा 15-20 दिन ज्यादा लगते हैं. डॉक्टर डट की वैरायटी ना सर, ये की वैरायटी है, डट आपकी है. हाँ, ये डट की ये डट साहब के साथ एक्सपोजर का है. तो आपके एडवाइजर है ना कमेटी में रहते हैं. मेरी मिसेस की एडवाइजर थी, मेरी को एडवाइजर. सो इट इज अ वेरी गुड थिंग कि डॉक्टर एस्टार्ट ही इज डायरेक्टर ऑफ रिसर्च नाउ. सो we are associated with number of departments. So for this ये कद्दू जो है मगज कद्दू you can grow. आप अंदर में बाहर हुआ हो, आपको बहुत पैसा मिलेगा इसमें मगज कद्दू में से. Even you can go for mushroom. आपकी जो यहाँ पे conditions हैं that is really favorable. आप you can think of this mushroom production. Button हो गया, टिंगरी हो गई, a number of mushrooms are available. You can contact anyone in PAU. आप मेरे को कॉल कर लो अगर if you are having any doubt, I can help you. This is all you can grow with the drip irrigation system, soilless. Soilless ही है ये. और you can grow number of flowers. Flowers हर जगह डिमांड है. सजावट के लिए आप यू कैन टारगेट द फेस्टिव सीजन्स, यू कैन टारगेट द शादी का सीजन नहीं आता है जो सो एक दिन में 2,000 शादी हो रही होती है. सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन टारगेट दैट सीजन. सो यू विल अर्न नंबर ऑफ मतलब हैंडसम मनी. आप वहाँ से कई तरीके से यू कैन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर यू कैन अर्न. So this is a schematic diagram. ये एक आपका सिस्टम लगा हुआ है, सिस्टम में ड्रिपर्स लगे हुए हैं, 1 way है, maybe 4 way, maybe ring ड्रिपर्स. So when you are using this perforated cups, इसके roots नीचे आ जाएंगी. So this is a very common. So this is all about the drip irrigation system in hydroponics. Any doubt or anything you want to ask or any explanation? Sir, Sir, please speak. Sir, what is the advantage of going for this sort of irrigation? Soilless technique in growing mushrooms. What is the advantage of soilless? In mushrooms. In mushrooms. Yes.
आप मशरूम लगा रहे हो, वो हैंगिंग होते हैं, आप बटन मशरूम्स के जैसे भी होता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसको पानी की जरूरत कम होती है। आपने जब पानी डाला, मग से डाला, कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया। आपके यहाँ पे जो टेम्परेचर है मेरे ख्याल से दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर एंड इट विल गो अप टू मार्च और अप्रैल। ये इतने दूर तो जाए, मार्च तक जाएगा Winter. है ना, विंटर्स जो मतलब ये थोड़ा आपका ठंडा है जो। लिए सो मशरूम कैन बी ग्रोन इन दिस पर्टिकुलर सीजन। लुधियाने में या आपके प्लेन्स में जब जाओगे, सो वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट। अब दिसंबर आ गया ना, अब नहीं हो सकता। अब मतलब यू कैन नॉट ग्रो नाउ, आप इसका हार्वेस्ट कर सकते हो एंड दिस हार्वेस्टिंग विल गो अप टू दिस जनवरी एंड फरवरी, दैट्स ऑल। वहाँ पे अगर आपने थोड़ी भी गलती की तो सारे का सारा जो प्लीज प्लीज बी सीटेड, आपका जो सारे का सारा सिस्टम है गल जाता है। इसमें थोड़ी डलती है ना तो गल जाएगा सारे का सारा सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि द अमाउंट ऑफ वाटर यू हैव अप्लाइड टू द सिस्टम दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट, दैट इज व्हाई इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। आप उसमें ड्रिप में डालो, उसको ऑप्टिमाइज कर लो कि आप 10 मिनट चलाना है, 5 मिनट चलाना है, 2 मिनट चलाना है। सो व्हाट विल हैपन, मैंने रिंग टाइम जो बताया आपको आप यूज करो इफ यू वांट टू ग्रो। आपको एडवांटेज मैं बता रहा हूँ इस समय में। द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड कि एक बार की आप मग से पानी डाल दे, कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि व्हेन यू आर गिविंग सम न्यूट्रिएंट्स, अगर ज्यादा हो गए तब भी आपके बैक्टीरिया उसमें अफेक्ट होंगे, कॉलोनी अफेक्ट होगी। कम हो गया तो वो होगी अफेक्ट। ड्रिप इरिगेशन के थ्रू you can control not only the amount of water that is to be applied, you can control nutrient also. आप crop coefficient कर्व में जाओगे जब, तब आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल में आपको ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं है। That is why what we are saying, if you have grown any crop, don't give fertilizer up to 20 days. After 20 days, means after 3 weeks, you can start giving fertilizers. क्योंकि जो soil में available होता है, that is much more than sufficient for that plant. So इसके मशरूम के लिए पावर नहीं होगा। This will be true for mushroom also. उसका कम या ज्यादा होता है वो मेरे को नहीं पता कि कितना होता है, क्योंकि what we are growing along with any other department, वो ट्रायल में आपको शेयर कर रहा हूँ। If you are having really you want to know about, you can call me. I will give you every. I will try my level best. सब जीरो टेम्परेचर में फिर ये इवन इफ इट इज इंडोर्स। अब बाहर आज का रात का टेम्परेचर कितना था? अभी तो चलो मे भी 3-4 है। हाँ In December or January it will go up to -5, -6. -5 -6 ठीक है। -6 बाहर आपके पानी जम जाता है। आप रूम के अंदर में ग्लास रखोगे पानी जमेगा, रूम के अंदर नहीं। तो मशरूम कहाँ पे लगाओगे आप? मशरूम कहाँ पे लगाओगे? आपने आंसर दिया इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं। See, now I'll talk about the nutrient film technique. This is the system. This around 7 years back we have devised. हम लोगों ने इसकी पूरी डिजाइन, कंप्लीट डिजाइन, we can say it's our design. हम लोगों ने किसी से कोई फेसबुक या किसी चीज की हेल्प नहीं ली हुई है। And we have grown number of crops. आपने कहा था कि इसमें लेट्यूस हो सकता है बस, और you can take lettuce, you can take bok choy, उसको bok choy सर्च करके देखो आप क्या कहते हैं उसको। समटाइम जैसे bok choy कहते हैं ना, It's an exotic business. bok choy that is a लुधियाने में इस समय में 50 रुपीस की एक पीस बिकती है। You can grow bok choy, you can grow this broccoli, all the crucifery, जो भी आपके कोल क्रॉप्स हैं, you can grow easily. You can grow cherry tomato, you can grow tomatoes, you can grow brinjal, you can grow, हमारी वैरायटी है ये की। आप कड़वी मिर्च भी लगा सकते हैं इसमें, चिली। You can grow शिमला मिर्च, there is range, एक नहीं है। आप मेरा नंबर ले लीजिए, सर हैं यहाँ पे उनके डिपार्टमेंट में, आप मेरे से ज्यादा तो आप इनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने जिस डिपार्टमेंट से किया, वी आर आल्सो एसोसिएटेड विद दैट डिपार्टमेंट, तो हम लोग उन्हीं से हेल्प लेते हैं। आप सर से, मेरे से कांटेक्ट करेंगे, आप सर से कांटेक्ट करो, ही विल हेल्प यू इन मच बेटर वे। सो न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, इसमें आपको देखो ये आपके ग्रो चैनल्स हैं, ग्रो चैनल का परफोरेटेड कप्स की जगह है, यहाँ पर से एक जगह से इनपुट है, इसका पानी आ रहा है या न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन आ रहा है, दूसरी जगह से पानी बाहर जा रहा है। नंबर ऑफ क्रॉप्स यू कैन टेक।
ये आप लोगों ने एक खिलौना तो नहीं कह सकते कि खिलौना बनाया है, बट आप बहुत बड़ी बड़ी चीज दिखाते हो ना, फार्मर को कहता है यार ये तो साढ़े दोनों नहीं होना, वो पहले बोलता है नहीं ऐसे नहीं कर सकते। उनके लिए छोटी सी चीज बना के दिखाओ, वो कहता है बहुत कर लेंगे। हाँ, फिर अच्छा है, वो कहता है कि जब इससे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं फिर आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ ठीक है आप बड़ी चीज दिखा दो यार ये सब काम का नहीं है, वो आपको दैट हैज टू बी नथिंग विद यू। ये छोटा सा एक बनाया है, ये सिर्फ फार्मर्स के लिए है, यार तू इससे अच्छा कर सकता है, वो कहता ले कुछ भी नहीं, इससे अच्छा और भी अच्छा कर लेंगे, ठीक है भाई तू कर, इट इज रिक्वायर्ड। सो ये हमारे सारे स्टूडेंट्स की है। इसमें चेरी टोमेटो, आप इसका जो चेरी टोमेटो है सर टाटसा दी जी वैरायटी सली जिंगल भी नाल लग गया है। तिल चेरी टोमेटो दी, आप चेरी टोमेटो हैव यू एवर टेकन? चेरी टोमेटो खाया आप लोगों ने? इसका टेस्ट थोड़ा कड़कपन में होता है, मतलब मीठा नहीं होता। अभी टाटा साहब ने आपके डिपार्टमेंट से इन्होंने 3 वैरायटी निकाली है पीएयू ने, पंजाब चेरी रेड, पंजाब चेरी सोना, पंजाब चेरी केसर। आप कभी अभी मैं लगा के आया हूँ अपने सिस्टम में, रिसर्च फील्ड में, आप कभी भी उस समय आना, आपको मैं टेस्ट कराऊंगा, रियली इट इज स्वीटर वन, मिठी है, मिठी। मतलब अब आप किसी को भी आप करवा, एक ग्रो करो, आप 2-4 बूटे लगाओ। स्टॉक भी कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं जल्दी से अभी। हमारी भी सब जो वैरायटीज है आल्सो वर्किंग ऑन चिली टोमेटो, हमारी भी हमने भी 3 उसमें सिलेक्शन की है कि वो भी मीठी है सर, तो पूरी सैलेड के लिए अच्छी है सर, हमारे लिए भी रेगुलर And he has yellow color, Yellow, sir, red red and and- variegated also, Yes, no? One is variegated. वेरी गुड। मैंने जिंदल से तीनों वैरायटी लेके अच्छा सर, वो किया है। इस साल हम आपको सर एक्सीलेंट सर दिस ईयर वी विल बी सेंडिंग यू सर सीड, हमारा भी ट्राई कीजिए, दैट्स ग्रेट। आपको भी तो भेजेंगे आप सर। लोगों के लिए मैं यू आर डूइंग वेल। तो आपका लेटेस्ट आइसबर्ग लगा लो, चाहे लिफी ये लगा लो, इसकी इतनी शानदार ग्रोथ होती है कि इस समय लुधियाना में लेटेस्ट जो है ना वो 50 to 60 रुपीस का एक बंच मिलता है। यहाँ मेरे को कॉस्ट नहीं पता, यहाँ मार्केट बिल्कुल यहाँ एक्चुअली अभी कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी Consumer acceptability नहीं है। उतनी नहीं है, बट वंस वी इंट्रोड्यूस इट इन द मार्केट हाँ, डेफिनेटली पहले तो आपको इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, 1-2 साल आपको थोड़ा सा बिजनेस देखना ही पड़ेगा, वो बोलेगा यार ये क्या, क्योंकि लेटेस्ट खाने के 5 मिनट के बाद तक ना आपका मुंह में अजीब सी टिंगलिंग इफेक्ट आ रहा होगा, कहता है यार क्या खिला ये पता नहीं। वो पहले आपके क्या बोलना चाहिए, चेरी टमाटो में भी यही था, वो बाद में वो स्वीटनेस आई है जो आप लोग भी मतलब यू आर गोइंग टू अब तो है, हम इंट्रोड्यूस। इन्हीं से मैंने इस बार सीड किया था, That's आई very true. प्रिविटेट में हूँ, बट इट्स वेरी मच ना। सो ये आप फार्मर्स तक लेके जाओ इसको बस, और आपको जो सिस्टम चाहिए ये मैं सारा आई विल डिजाइन, आप कभी भी कॉल कर लेना, सबको कॉल कर लेना, आप सिस्टम के बारे में मत घबराना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ अ सिस्टम इज रिक्वायर्ड आई विल डिजाइन इट फॉर यू, दैट्स ऑल। This is another way iceberg is there, ये अलग वैरायटी है इससे, ये इतनी पूरी बड़ी बॉल, इसमें जब आप देखोगे ना, मैंने व्हाट आई टोल्ड यू बॉक्सोई, अब इतनी छोटी होती है ना उसकी जो टोटल वॉल ग्रोथ होती है, जब आप इसमें हाइड्रोपोनिक्स में लगाओगे इट विल ग्रो लाइक कैबेज, बिग साइज। सो दिस इज सेम वे, दिस इज अ आइसबर्ग, आपको बाहर आइसबर्ग छोटे छोटे मिलेंगे, यहाँ आइसबर्ग पूरा आपको खिला हुआ मिलेगा एकदम। अब सबसे बड़ी बात है परफोरेशन ज्यादा होती है, लाइट वेटेड, साइज बिगर होगा, उसके मतलब टाइट नहीं होगा, उसको पत्ते बिल्कुल लूज, इफ यू पिक वन लीफ इट विल कम आउट इजीली, ये इसकी खासियत है। सो फॉर दिस आइदर यू कैन यूज राउंड पाइप्स और यू कैन यूज रेक्टेंगुलर वन, ठीक है। राउंड पाइप्स रेक्टेंगुलर वन में इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि ये यूपीवीसी होती है, अनप्लस साइड्स, महंगी बहुत है ये। पीवीसी में प्लास्टिक साइड्स है, फ्लेक्सिबिलिटी कम ज्यादा हो जाती है, उससे कुछ नहीं होता है, आपको कोई लेना देना नहीं, आप यूज पीवीसी, दैट इज चीपर वन, वो आपकी मोल्डेड होती है। मोल्डेड के साथ में देयर इज अ वन रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि वो 2 इंच 2.5 इंच साइज की आती है, यू कैन नॉट यूज 3 इंच कप इन रेक्टेंगुलर वन। ग्रो चैनल जो है, दिस इज कॉल्ड ग्रो चैनल, सो दैट इज हैविंग डेप्थ ऑफ 2 इंचेस। So how come you can fit the 3 inch cup in 2 inch size? So इसका मतलब क्या हुआ कि you cannot grow the bigger plant. फिर आपको restrict करना पड़ेगा leafy vegetable में. Whether it's a fenugreek, it's a spinach, or it's a lettuce or any other thing. धनिया यहाँ मेरे को नहीं पता, coriander leaves, how it is, the rate is affected by, I don't know in Srinagar. But in Ludhiana, what is happening? These days we will go now, वो इतनी bunch आपको free में दे देगा। मैरिज सीजन आएगा तो हाँ,
उसके बाद में ये जो है ना अभी इतना बच देगा, फिर इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, जब मार्च विल कम ना तो ये आज यार दुनिया नहीं दिया भाई साहब 200 रुपए किलो लेके आया हूँ मैं, ठीक है। When the season summer will come, the rate of green coriander leaf that will go up to 400 rupees kg. You can target that particular season. 400 rupees kg. Which route you are buying? किस सीजन में सर? Summers. It is starting from May, June, July, August. September तक चलेगा। 400, 300, 350, 400, 450 rupees kg. Coriander leaves in Ludhiana. You can target that particular season. ठीक है, leafy vegetable. So this is perforated cups. इसमें roots बाहर सारे और from all around the roots will come out and it will extract whatsoever nutrient is available in that particular grow channel. इसका support media जो है next slide आने वाली है. There is no need to use coco peat. You can use anything. अब anything में Paddy straw. Paddy straw. Why do you go for paddy straw? That is a decomposable. It should not be decomposable. आपका अगर फंगस आ गया ना, in a single go, all the plants will go. It will be ruined away. आपके पास और भी चीजें हैं. आपके पास में बादाम के छिलके हैं. आपके पास में दूसरे hard, any shell which is hard, or you can say that is inert. आपके cobs होते हैं. मक्की के cobs होते हैं. Why did we think of the cobs, the pieces of the cobs? आपके यहाँ नारियल पानी पीते हैं? नहीं, यहाँ पे नहीं है. और शेल्स मंगा सकते हो उसके, कोकोनट शेल्स तो होते हैं बट मतलब आपके यहाँ कॉमन नहीं है तो आप डोंट गो टू बाय एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड. हाँ, वो कॉमनली ये चीज जो आपका लोकली अवेलेबल मटेरियल, थिंक ऑफ दैट. आपके मेरे ख्याल है वॉलनट के शेल्स मिल जाएंगे, आपके दूसरे कई शेल्स मिल जाएंगे. यूज इट. व्हाई उसको क्यों नहीं यूज कर सकते? व्हाई कांट वी कैन यूज इट. क्योंकि सर वॉलनट शेल में वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ दैट जुगलैंडिस, सर इट इज दैट इज अ इशू. मतलब उसमें एक होता है सेकेंडरी केमिकल इज. आप उसको ट्रीट करके लगा के ट्रायल ले लो. आप ओके, अभी मैंने तो किया नहीं, आप ट्रायल ले लो. कॉब्स वी कैन यूज एनीथिंग. आप ट्राई अपनी जगह में करके देखो, क्योंकि आपके लेटलॉन्ग चेंज होने के बाद में आपका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज होती है. ओनली टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दे आर टू थिंग्स, दे आर अफेक्टिंग द बैक्टीरियल ग्रोथ. दूध भी आपके यहाँ पे आप रखोगे बाद दूध नहीं खराब होगा. हमारे यहाँ पे आज रखोगे सुबह रखोगे शाम को खराब हो जाएगा. लेटलॉन्ग के साथ चेंज हो रहा है, तो आपको यू हैव टू डू सम रिसर्च. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ आप किसी का यूज कर लो लोकली अवेलेबल मटेरियल. नहीं तो आपके क्ले बॉल से कोई बहुत ज्यादा एक बार की इन्वेस्टमेंट है, ये 10 साल 15 साल कहीं नहीं जाता. एंड दिस इज हाईली इनर्ट, इज नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड बाय एनी बैक्टीरियल और वायरल. कुछ किसी का कोई असर नहीं इसके ऊपर. यूज इट. सर अभी आप इसमें क्या यूज कर रहे हैं? इसमें ये सारे अलग अलग हम लोगों ने यूज किया, लेकिन अब इसमें हम लोग स्ट्रिक्ट कर रहे हैं क्ले बॉल्स. अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगोगे तो आई विल गो फॉर क्ले बॉल्स. इट्स अ वेरी इजी टू वॉश फॉर नेक्स्ट सीजन, वेरी इजी टू हैंडल. और जब आप इसको फिल कर रहे होते हो ना, तो एक वो बाहर कंचे से होते हैं जो मार्बल खेलते होते हैं, जो बस उसकी जैसी होती है, वापस डाल दो आप उसको, मतलब वेस्ट नहीं होता, वेस्ट ही नहीं होता. सो जब हम लोगों ने इसमें स्ट्रॉबेरी लगाई थी, उस समय में इवमी के जो एशिया हेड थे, ही विजिटेड फ्रॉम श्रीलंका. सो उन्होंने भी ये सिस्टम, मतलब आई हैव शोन हिम कि व्हाट वी आर डूइंग. सो वी आर गोइंग डिफरेंट एजेंसीज, पीपल दे आर कमिंग एंड वी आर शोइंग इट. ये इसमें शो कर रहे हैं कि ये जितनी ज़्यादा आपके फार्मर्स तक पहुंचेगी, फार्मर ने किसी के पास तक, उतने आपकी सोसाइटी में आपकी फ्रेश चीज़ें अवेलेबल होंगी. मार्केट का जितना भी कंटेमिनेशन है वो खत्म होगा, और इसमें आप यू कैन गेट द रिटर्न ऑल्सो. इसका ये पर्पज है. सो आप स्ट्रॉबेरी, इफ यू आर यूजिंग स्ट्रॉबेरी, इसके स्ट्रॉबेरी की जो टीडीएस होती है वो इतनी स्वीटनेस में आती है, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट होगा इसका. आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन कैन बी पॉसिबल एट योर लेटलॉन्ग. Then certainly you go for it. अभी अगर आप लेट हो रहे हैं तो इस समय में कामारोजा और इसमें विंटर नहीं, कामारोजा इज ओवर, क्योंकि नवंबर आ गया ना. कामारोजा यू कैन गो फॉर. कामारोजा की एक खासियत है, इसमें नंबर ऑफ फ्रूट्स, द ब्रीडिंग ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट्स विल बी लेस
बट द साइज इज द एक्सट्रीम वन। पूरे इस समय में इंडिया में जितनी वैरायटी होगी इसके साइज की कोई नहीं होगा, और जितना साइज बड़ा होगा उसका टेस्ट उतना स्वीटनेस आएगा। कमर उसमें चार्ली भी है, वो अर्ली है, नहीं वो सितंबर में लगेगी, लेकिन यू कैन गो थ्रू द लिटरेचर कि आपके एरिया में कौन सा इससे आपने कुछ पॉलीथीन बांधा हुआ है पाइप पे, इसमें दूसरी फोटोग्राफ इसमें ये हम लोगों ने पहले जिस समय में फर्स्ट इंस्टेंस हम लोगों ने यूज किया था तो वी कवर्ड इट कि इसमें से बाहर से कोई चीज ना आए, बट वेरी नेक्स्ट टाइम वी फाउंड कि अगर उसमें जो कोई गैप रह जाता है तो दैट इज अ ब्रूडिंग प्लेस किसी के लिए भी, so that we removed it. With course of time, एक ना एक findings you will achieve the findings, you will achieve the platform and will keep on going. So this is how first we covered it and then we removed. This is the overall concept. These are the grow channel, these are the pot size where you are fixed. This is nutrient solution reservoir. That is important. Here you will fix a pump. पंप बोलने का मतलब है कि इट्स नॉट 0.5 हॉर्स पावर 0.25 हॉर्स पावर। आपके यहाँ कूलर चलते होते तो आपको एक आता है वो अच्छी पंप छोटा वो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर 200 प्लांट्स इन अ सिंगल रूम। तो ये दिस इज मींस दिस इज ऑल डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर हाउ यू विल डेवलप इट। इसमें आपको एक साइड ऊंची रख के इस साइड को नीचा या इस साइड को नीचा रख के उस साइड ऊपर आपको यू हैव टू प्रोवाइड अ स्लोप just to give the gravity force to flow the water or the nutrients. So this is substrates you can use, cocoa flax you can use, vermiculite you can use, perlite, rice husk you can use, cocoa peat you can use. There are number of things we are using. मैंने अगली स्लाइड जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये हमारे रापुर आपके क्लासरूम का यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। We are growing nursery. उसके बाद में ये आपको मैंने बताया दिस इज द नर्सरी ऑफ ऑर्किड्स। अगर इसका आप ध्यान से देखोगे आप इसमें कोकोपीट तो है बट हियर वी हैव टू यूज एक्टिवेटेड चारकोल्स, वी हैव टू यूज कोको फ्लैक्स, वी हैव टू यूज दिस कोकोपीट। इसका रेशियो अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग है। आई गिव यू व्हेनेवर यू विल आस्क। So, I am talking about the media or substrates. It's not only cocoa peat, it's not only water. You can use a number of things. This is, मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम आपसे एक चीज़ के लिए मत करो कि मैंने सिर्फ वेजिटेबल लगाना है फ्लोरिकल्चर। यू कैन ग्रो नर्सरी ऑल्सो। नर्सरी में जितना पैसा है किसी चीज़ में उतना पैसा नहीं है। आपको तुमने क्रॉप ग्रो की, आपको 90 दिन मिनिमम रुकना पड़ेगा पैसे लेने के लिए। नर्सरी ग्रो की 15 दिन से लेकर 20 दिन के अंदर में आपको पूरे पैसे वापस आ जाते हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन यूज हाइड्रोपोनिक्स। यहाँ पे बैम्बू के जंगल में बैम्बू प्रोपगेशन दैट इज द बेस्ट वन बाय यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स। वो भी NFT। आपके जो सजावटी बूटे होते हैं, आपका कोई सा भी स्नेक प्लांट का ले लो आप, जो कि प्रोपगेशन लीफ के थ्रू होती है, आपके जब सॉइल में लगाओगे आपको 2 हफ्ता 3 हफ्ता लगेगा। अगर आप हाइड्रोपोनिक्स में लगाओगे 8 से 10 दिन के अंदर में दैट इज वेरी याद रखना इस बात को। इट्स अ वेरी रियली इट्स अ वर्थ टेक्निक। ये नर्सरी हमारी है, यू कैन सेल। आपको एक एक बूटा 5-5 रुपए का बिकता है वैरायटी के अकॉर्डिंगली। अभी चेरी टोमेटो है, दे आर सेलिंग अ सिंगल पीस बाय 3 रुपीज 3। आप इसमें बना के बेचोगे, अगर 5 रुपए की बेचोगे पीपल विल कम एंड दे विल बाय, सर्टेनली दे विल बाय। दिस इज अनदर टेक्निक दैट इज एब एंड फ्लो। ये हम लोगों ने जो डॉक्टर केजी सिंह वहाँ पे रिटायर हुए, उन्होंने इसको दिस आइडिया वाज कंसीव्ड बाय हिम एंड ही हैज गिवन दिस थिंग। ये रूफ टॉप किचन गार्डन के नाम से है कि आपके एरिया में जो फार्मर्स हैं, जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं यार समझो रोड ही नहीं, उनके पास ज़मीन ही इतनी है। तो वो एक बंदा है जो लुधियाने शहर में है, वो 3रे माले में रहता है, 3rd फ्लोर में रहता है। वो गांव से गया और बोलता है मेरे को कंटेमिनेटेड चीज़ नहीं खाना है, जस्ट आई वांट टू ग्रो माय ओन जो वेजिटेबल्स जो भी है। सो दिस इज द मॉडल वी हैव गिवन। एट अ टाइम यू कैन ग्रो 7-8 क्रॉप्स। आप इसके भी डिज़ाइन अगर आप रिक्वायर इट
आप काम करना चाहते हैं एट अ टाइम, इसकी अगर आपने इसमें पुदीना लगाया और इसमें धनिया लगाया ना, आप वर्ल्ड की किसी भी उससे आप कंपेयर कर लेना उसकी फ्रेग्रेंस। जैसे हम लोग जब फार्मर जाते हैं बीच में से जाते हैं, बस उसको एक बार कह दिया तो ना वो हाथ पा दे बोली तो दी और सौंग ले उनके पास, दूसरी बार की जरूरत ही नहीं पड़ती होगा। आप भी जब कभी यहाँ पे अगर आप लगा लेना, मेरी बात पे यकीन नहीं रखना, आप कभी लगाना and just start doing research on it, then you will come to know what is the quality of this ebb and flow technique. This is rooftop kitchen garden, what name we have given. Ebb and flow, this, special thing is like, if this is a nutrient reservoir. आपने यहाँ पे पंप रखा है, यहाँ से आपने इसको nutrient solution दिया. If you have given 100 liter of nutrient solution, then in 24 hours, at least 20 to 25 liter of the nutrient should come to the next tank. अगर वो नहीं आता है, तो आपकी डिजाइन अप्रोप्रिएट नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल फ्लैट बेड नहीं है। It is having slope like this, 2 beds. Then it is having slope in one direction like this. So first the leachate, as I told you, the 20 to 25 liter of nutrient should come out and it should be collected in the next reservoir. So that is known as leachate. So when you are irrigating due to this slope, the nutrient will come out and it will get collected in the channel. Then from channel itself, it is having slope like this. So one way it is having gravitational flow and it will move around from this side to that side, and the collection pipes are there, and through collection pipes it will get collected. This is ebb and flow. Then can we use that? It is recycling, ma'am, continuously. It is recycled. That is why we are collecting. This is roughly 1000 square feet area cover. Sir, it's a 12.6 meter. एक साइड 4 मीटर, एक साइड 3 मीटर है, बस। नहीं, टोटल सारा है। ये इस साइड 4 मीटर, इधर 3.2 मीटर है। इतना साइज और उस साइज से देख लो कितना हो गया, इतना आपको 20 फीट होगा, 20 मीटर होगा, ज्यादा नहीं होगा, 20 ओवरऑल 12.2 मीटर स्क्वायर का एरिया ये लेता है, बस। क्रॉप्स इसकी लगी हुई सारी। स्लैब जो है, यू कैन यूज grow slabs for capsicum, you can use it for tomato, you can use it for kheera, you can use it for brinjal. ये स्लैब आती है, as such स्लैब को आपको काटना पड़ता है, ये कट ऐसे नहीं मिलेगा, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आप क्या लगाना चाह रहे हो। सो दिस इज 1 मीटर लेंथ, आप 20-25 सेंटीमीटर का प्लांट लगा रहे हो, आप 30 सेंटीमीटर का प्लांट लगा रहे हो, अकॉर्डिंगली यू हैव टू कट इट। It is having only and only cocopeat, nothing else. सिर्फ cocopeat होती है उसके अंदर, एक पतली सी स्लैब होती है। जब इसमें ये देखो आप ऐसे, इसकी जो प्लांटेशन है, ये आपके क्या बोलना चाहिए, जो भी बूटा लगा होगा टमाटर का, you can take crop up to 9 to 10 months. ये ऐसा चलते जाता है, ये इसकी बेल बढ़ते जाएगी, इसको आप इसको रैप कर जाओ लगातार। 20-25 फीट हाई हो जाती है, इतना दूर तो नहीं जा सकते ना, तो उसको नीचे से तोड़ के उसको यू जस्ट कीप इट, उसकी रैपिंग करी जाओ। आपका अपेक्स जो है वो ऊपर ही रहता है, नीचे आप यहाँ से ऐसे मूव करे जाता है वहाँ से। ये पतली सी स्लैब होती है, इसमें परफोरेशन होती है नीचे, ऊपर आप अपने अकॉर्डिंगली या बनी बनाई ले लो आप इसको। जब इसमें पानी डालोगे तो ड्यू टू स्वेलिंग इट विल फुल, और इसमें पानी निकलने की जगह नहीं आपको। अगर बाई चांस in third stage or second stage the roots, it has been grown up and it's clogged the blockage or the perforation, आपका सारा प्लांट चले जाएगा। अगर ड्रेनेज नहीं हुआ, किसी तरह ब्लॉक हो गए आपके, तो वो पूरी स्लैब गल जाएगी आपकी। So we have to take care minutely. साइड्स में भी कट मारते हैं इसलिए हम लोग इसके। So अगर we are using drip irrigation system or we are not giving water at a time, so it is ebb and flow, otherwise it is this flood and drain. At a time आपने पूरा पानी दे दिया,
जितना पानी लेना लिया, फिर वो धीरे धीरे पानी निकल गया. This is the same way, but when you are not using it. Now, see, we have started with this hydroponics. We have started with the turf and coco peat. Then we went to NFT, Aventflow. Then the next step, we are working with aeroponics. Okay? And again, I'm giving you one thing, that this system, sir, yesterday I was talking about now, that this system was designed by ourselves. हम लोगों ने किसी की हेल्प नहीं ली. इसमें सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका नोजल है हाई प्रेशर नोजल, what is the total affected radius of influence and how much area it will cover and what will be the discharge per unit time. Maybe 1 minute, maybe in 2 minutes, maybe in 5 minutes, that depends upon you. अगर आपको इतना पता है, we have developed this system, we have grown crops. ये 4th year की crop है. This time Punjab Agriculture University has developed 2 varieties. They are giving tissue cultured seedlings of Punjab potato 101 and Punjab potato 102. So whatsoever is there 101, 102, what is a line, I don't know exactly because that is not, we are not meant to know about that thing. हम लोग सीधा ग्रो कर रहे हैं, हम लोग सीधा न्यूट्रिएंट सोल्यूशन और उसके बारे में we are taking care of this. And हम लोगों ने एक दो नहीं 50-60 से शुरू करके 98 tubers per plant we have achieved. In last this मिलनी हुई थी हमारी जो सीएम साहब की फार्मर सीएम साहब की मिलनी जो जनवरी के महीने में हुई थी और एक मार्च में हुई थी. इन दो में वी हैव डेवलप्ड अ यूनिट सिस्टम और उसको हम लोगों ने ग्रो किया था. ये आप देखो टिश्यू कल्चर प्लांट है. टिश्यू कल्चर प्लांट ये हमारे रिसर्च एरिया में लगा हुआ है, उन ब्लॉक्स के ऊपर में लगा हुआ है. ये विक्स है, ये होल्स है, इस ऊपर में आपने बिछा के इसको इसके विक के अंदर डालना होता है. इस विक के अंदर से ये प्लांट ऐसा ग्रो करता है और इसको आपको मैंडेटरीली यू हैव टू कवर दैट सरफेस विद पॉलीथिन. In first year we use translucent polythene and in next season we use the totally transparent system. ये आप देखो, this is how we have grown. छोटे प्लांट आपका देखो. You have to fix it in the wicks. वहाँ नीचे से उसका पानी आएगा, वो प्लांट एक दिन के अंदर में आपको रूट्स इतनी छोटी नजर आएंगी 2-3 इंच की. आप 24 घंटे के बाद जाओगे वो 6 इंच 8 इंच की हो जाती है क्योंकि वो in search of nutrient and in search of food, it is growing like anything. आप आलू का बूटा अगर देखो अपने फील्ड में, so उसकी लेंथ जो होती है रूट्स की, that is not more than 1 feet. But we are growing, its root is growing up to 6-7 feet और at last हम लोगों को काटना पड़ता है. 6 to 7 feet long roots. This is another view. See these two pictures, this picture and this picture. क्या नजर आता है? This picture and this picture. एक साल की है वो और ये next year की है. इसमें what is the difference between these two pictures? In this picture, in 1 year, our plants were severely affected by early light. Because we have grown inside. हम लोग एक पॉली हाउस है, हाईटेक पॉली हाउस, उसके अंदर एक और नेट हाउस बनाया हुआ, उसके अंदर में फिटेड है. So what we found, due to non-availability of sufficient amount of light, early light, that's like our plant, a system. Then next year, very next year, we introduce this artificial light and see the growth, height. See here and see there. Artificial lights, and these lights are not normal lights, these are the PAR lights, photoactive synthetic radiations के लिए वो आपकी active है पूरी. So this is see the growth means if you are introducing artificial lights for seed potato production, certainly you will get benefited of it. Make it sure. तो वो लाइट्स भी काफी महंगी है इसकी.
हाँ जी, लाइट्स भी आज के डेट में लाइट्स भी बहुत महंगी है, बट कॉस्टिंग ओवरऑल लाइट considering the particular this thing is potato. व्हाट इज दिस? मैं आपने अगर कॉस्ट कंसीडरेशन की बात की है, जस्ट मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, सेटिस्फाइड हो क्योंकि पोटैटो है ना, बेसिकली पोटैटो तो ऑलरेडी आप ये जो देख रहे हैं क्या है? नहीं, seed. आपका क्वेश्चन मैं समझ गया, मैं आपको सिर्फ कॉस्ट कंसीडरेशन में ही रहूंगा मैं, ठीक है? आप पहले मेरे को लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, देन अगेन आई आस्क यू वेदर यू आर सेटिस्फाइड और नॉट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? दिस इज स्टाइरोफोम, बहुत महंगा नहीं है. आपका जो बच्चे यूज करते हैं थर्मोकोल, थर्मोकोल से इंफीरियर नहीं, उससे थोड़ा सुपीरियर है ये पफिंग में यूज नहीं होता. पफिंग इससे और अगला स्टेप है. पफ्स आते हैं ना, जो फ्रिज को कभी आप रिपेयर शॉप में जाना तो उसके बीच में एक येलो कलर की स्पंज जैसी चीज़ निकलेगी, दैट इज पफ्स. सो थर्मोकोल ये है और पफिंग ये है, इसके बीच में समवेयर हियर दिस इज स्टाइरोफोम इज देयर. एक साल खरीदोगे 10-20 साल नहीं जाता. अगर 1 लाख रुपए का भी आपका आया, सपोज आता नहीं इतना महंगा, मैं इसलिए सीधे से राउंड फिगर में रख रहा हूँ, मैं 1 लाख लगाया, मैं 10 साल आपका काम आया, 1 साल में कितनी कॉस्ट आ गई आपकी? 10,000 ज़्यादा नहीं है आपकी कॉस्ट, बस यही कॉस्ट है इसकी. पाइप से आपकी मिल जाती है, पाइप भी आपकी उसका भी लगा लो, सारा मिला के लाख रुपए का 1 साल का 10,000 का खर्चा है आपका सारा सिस्टम का. नोजल्स हैं आपका नोजल कौन सा? ओवरऑल तो आपका ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. आज की डेट में हर चीज दीज लाइट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. सर मैं लेट मी पर्टिकुलर क्रॉप है, इसमें पोटैटो, इसमें आपके 4 फीट की लाइट आती है जी. अभी आपको कॉस्ट कंसीडरेशन आप याद रखना, एंड ऑल द प्रेजेंट यू प्लीज टेक केयर, नोट कर लो कि कॉस्ट है. मैं आई विल टेल यू वन थिंग, कॉस्ट कहाँ पे कंपनसेट होती है. आई विल टेल यू वन थिंग, ये जो लाइट है ये 1,010 या 1,080 रुपए की 4 फीट की लेंथ है. और सस्ती है फिर. हाँ जी, फिर तो ठीक है, फिर नहीं सस्ती नहीं, अभी आप मत जाओ, सस्ती में महंगी में मत जाओ अभी आप. ये भी खराब नहीं होती, आपका वो नहीं है कि बल्ब फ्यूज हो गया चेंज कर दो, वो हो गया. ये पार है, ये खराब नहीं होती है. अभी 3rd सीजन यूज करने जा रहे थे हम लोग, ये सेम अभी आज लगी होगी वहाँ पे, ठीक है? 1,000 का 3 साल मान लो, 3 साल हमारे खराब नहीं हुई, 3 साल मान लो 300 रुपए की होगी ना, 300 से ज़्यादा की तो नहीं हुई 4 फीट की. देन हाउ दिस कॉस्ट इज, यू कैन कंसिडर द कॉस्ट, इट्स वेरी वेल विद इन द रेंज. इसकी हर चीज़ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये हम लोगों ने YouTube से नहीं देखा है, जो आप YouTube से देख के बोल रहे हो कि आपकी कॉस्ट इससे ज़्यादा होगी. नहीं इट्स नॉट. YouTube की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम नॉर्मली और प्लांट्स देखते हैं. यू आर राइट, यू आर राइट. तो वहाँ पे लाइट्स का इतना उन्होंने किया होता है, वो कॉस्टिंग फिर अगर देखा जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी यू कैन कॉन्टैक्ट मी. गाजियाबाद में रिसर्च इसके ऊपर में जो लाइट की जो उसके लिए बेसिकली हरियाणा में तो काफ़ी हो रहा है इसका. एरोपोनिक्स के थ्रू पोटैटो का तो काफ़ी काम हो रहा है, हद से ज़्यादा हो रहा है. एरोपोनिक में इतना हो रहा है कि हर बंदा बोल रहा है, हर बंदा एजेंसी कह रही है यार कि क्या नया करोगे, तो जस्ट टेल मी अबाउट द सॉल्यूशन. पोटैटो का ही हो रहा है. सी अब यूजुअली वी गो फॉर सीड प्रोडक्शन, और सीड का जो कॉस्ट है ना वो डिफरेंट है जो वेयर पोटैटो है. जो आपका संगा का नाम सुना होगा आपने, जो दुआबा एरिया है, जलंधर एरिया है, दैट इज प्योरली अ पोटैटो बेल्ट. वहाँ पे जब आप सीड की बात करोगे ना, इस समय में अभी हम लोगों ने अगर मार्केट से खरीदना है ना तो 70 और 80 रुपीज़ केजी का सीड मिलेगा. आलू का सीड जो है, आप जो आलू खा रहे हो वही है, वो आपको 20 रुपए किलो मिल रहा है. बट व्हेन यू आर बाइंग इट फॉर सीड पर्पस इट विल कॉस्ट ऑन 70 और 80 रुपीज़ पर केजी. 1 केजी में 10 से 12 आलू चढ़ते हैं. जब ये पोटैटो अप्रूव करेगा फार्मर, उस समय में एक बूटे में 10 से 12 ही उसके जो है सीड पर्पस के लिए उसके ट्यूबर्स निकलते हैं, बाकी नहीं निकलते, काम के नहीं होते, बड़े होते हैं, जो खरीदेगा उसको लॉस होता है. यहाँ पे आप केजी के हिसाब से नहीं बेच सकते. व्हेन यू आर पिकिंग इट बाय नंबर्स, तो यू हैव टू सेल इट बाय नंबर्स. अब आप बोलोगे यार इतना छोटा सा इसमें क्या निकलेगा, आप इतना बड़ा आलू भी लगाओगे ना तब भी उतना ही आलू निकलेगा जितना छोटे से नहीं निकलेगा. वन एंड सेम थिंग, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, उसमें मिसगाइड मत होना, सेम थिंग. अब मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने कहा था, यू जस्ट नोट इट, कि जहाँ कॉस्ट कंसिडरेशन है इंडिया में कुफरी है, IPR इंडियन पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट.
IPR है। और हमारे यहाँ पंजाब में आपका इंडो डच पोटैटो रिसर्च सेंटर है दोगड़ी में, जलंधर में। आप किसी भी, आप ब्राजीलियन ओरिजिनेशन होगा, मैक्सिकन ओरिजिनेशन होगा, यूरोपियन ओरिजिनेशन होगा, एनी ओरिजिनेशन यू आर हैविंग, आप जहां से आप सीड खरीदोगे, आप उसको बोलना मैं तेरे को ना 100 रुपए किलो खरीद के दूंगा, तू एक चीज सर्टिफाई करके दे मेरे को, जस्ट गिव मी अ सर्टिफिकेशन दैट दिस सीड इज वायरस फ्री। आप 100 में बोलता 500 रुपए का बोलो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, अपने को सीड खरीद के ले आओ। In this world, nobody is going to give you the stamp that is virus free. Just what I told you, I really mean it. और यहाँ पे आपका सारा पैसा बराबर हो जाता है। लेकिन this is virus free. I'll give you. When I say it, I'll give you. I'll give you the stamp. It's not me. It's my university, Punjab Agriculture University. Punjab Agriculture University will give you a certification that this is a virus free. Nobody in this world that will give you the system. आप cost consideration लाओ। मैं आपको 500 रुपए किलो बोला, आप खरीद के दिखाओ कहीं से। वो बोलेगा वायरस फ्री है, चेक मैं कराऊंगा। कितने बंदे आ जाएंगे यार, आई एम सेलिंग वायरस फ्री, ठीक है, यू जस्ट गिव मी द सीड, मैं उसकी चेकिंग में कराऊंगा। सी ऐसा लगता है इसमें, आज जब देखोगे ना दिल खुश हो जाता है आपका। ये दिस इज द ट्यूबर, ये आपको पिक करना पड़ता है। जिस समय 1.5 इंच से 2 इंच हो जाता है, देन यू हैव टू पिक इट अप। अगर आप पिक नहीं करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, आपके नंबर्स कम हो जाएंगे उस प्लांट में, बड़े होने का कोई मतलब नहीं है। It's not like if the size is bigger then it will be more fruitful. No, nothing is related with the size. Well, as and when it has reached to 1.5 to 2 inch size, just pick it up. That particular moment. ये अभी आप इस वाले को काउंट करके देखो, मिनिमम 50 ट्यूबर्स लगे होंगे यहाँ पे, इसी को भी मैं काउंट करूंगा। और इसकी अगर आपने 4 पिकिंग कर ली, कहाँ तक पहुंचेगा देखो। हर बार उतने ही नहीं लगेंगे। As and when it will get old, number of tubers will get reduced, but keep on giving you tubers. ऐसे ये निकलते ट्यूबर और उसको how we are storing it. ऐसे numbers में ऐसा store होता है. And this is not G1, G2, G3. This is G0. आपने दिया वायरस फ्री, जहां पे ग्रो किया, अगर उसकी जमीन में वायरस है या वो ही इज रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वायरस कैन कम फ्रॉम एनी मीडियम, सॉइललेस में भी आ सकता है, विद सॉइल भी आ सकता है। ये स्केल लगा के रखा हुआ, इसका साइज देख लो आप, ऐसे ऐसे निकलते हैं। ये एक पिकिंग का उसको लेके साथ में स्केल लगाया हो, ताकि बोला ऐसा लगता है ना काफी बड़े साइज के, सो आप उसको रेशनलाइज कर सको। So this is the system I designed yesterday. We are talking about it. This is आपने कहा एक दिन के अंदर डिजाइन सिंगल, एक स्टाइरोफोम एक लगा हुआ था, एक दिन में डिजाइन किया था। ये इसको जस्ट किसान मिलने के लिए अथवा गवर्नमेंट किसान मिलने के लिए यूज करने के लिए, और इट वॉज अट्रैक्टेड फार्मर लाइक एनीथिंग। अभी यहाँ से जाने के बाद में हम लोग की अगले महीने या जनवरी में इसकी ट्रेनिंग करनी है, और उसके लिए अभी से कम मिनिमम 120 to 130 फार्मर्स आर रेडी टू टेक ट्रेनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक दिन के लिए उनकी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं यहाँ से जाने के बाद। द नेक्स्ट थिंग इज वर्टिकल फार्मिंग। Vertical farming is not a single entity, but it is comprising of A-frame, it is comprising of the multiple plant holder, it is comprising of the individual towers, it may be column, it may be multi-stage, it may be urbanized area. लेकिन चाहे वो NFT हो, चाहे वो आपका स्वीट पोटैटो प्रोडक्शन यूनिट हो, चाहे आपका वर्टिकल फार्मिंग हो, सोल्यूशन इससे। और अगर आपको लगता है ना कि यार व्हाट सोल्यूशन, व्हाई टू गो फॉर माइक्रो एंड मिलीग्राम्स, आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ।
I don't know whether you are using RO system in your houses or not. Here it is needed or not, I don't know. If it is, you are using it, just collect it, effluent. RO system में जो बाहर पानी निकलता है उसको collect कर लो, उसमें डाल लो, आपको मिली माइक्रो छोड़ दो। आपको इतने फ्रूट, इतना आपको yield मिलेगा ना कि you will remember कि यार something was there. आज का लेक्चर याद रखोगे। ये ऐसा प्रोटोटाइप ऐसा शुरू करते हैं बच्चों के खिलौने के जैसे, क्योंकि हम लोग अपने लेवल पे भी कुछ करना ही है ना, मतलब आपने देख लिया ऐसा होता है, बट आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि यार वो पुरानी कंपनी बेच रही है वहाँ से ले लो, फार्मर मिलता हूँ कि वो बोलेगा आप लोग क्या कर रहे हो क्या आपके, फार्मर तो सीधा उसको तो कोई जाता है नहीं, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। सो वी हैव टू डेवलप आवर सिस्टम, जो भी सिस्टम अभी तक दिखाया मैंने, वी हैव डेवलप्ड बाय आवर ओन, हम लोगों ने किसी की कॉपी नहीं की है। सिमिलरली अब इंडिविजुअल, अभी आज बच्चे बीएससी के बच्चे उन्होंने ये यूज़ किया हुआ है, हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, एक्सटेंशन का आज वो था प्रेजेंटेशन थी, तो आज बच्चे ये सेम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। सो समवेयर सम प्लेस यू हैव टू स्टार्ट, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, अच्छा या बुरा बाद में देखेंगे, एंड हाउ फार इट इज फ्रूटफुल वो बाद में देखा जाएगा, बट समहाउ यू हैव टू स्टार्ट। नाउ दिस इज द ओनली थिंग आई शुड टेल यू कि ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो आगे जो आने जा रहा है आपका, अभी इसके बाद हो रहा है। एक मैंने सिस्टम, मेरी एमटेक स्टूडेंट ने इसके ऊपर मैं काम किया है, यहाँ पे भी आपके भी मिल्चिंग काउज होंगी, मिल्चिंग एनिमल्स होंगे, एक टाइम आता होगा जब आपको फॉडर की प्रॉब्लम आती है। पंजाब में 2 लीन पीरियड आते हैं, एक लीन पीरियड आता है मार्च के बाद, एक लीन पीरियड आता है अगस्त के बाद, उसमें कुछ भी नहीं होता है। इन दैट पर्टिकुलर केस माई एमटेक स्टूडेंट शी हैज वर्क एंड वी हैव फाउंड अ गुड रिजल्ट। उसमें हम लोगों ने इसके स्टैंडर्डाइजेशन फॉर दिस 18/24 का जो है हम लोगों का साइज है, इसके लिए हम लोगों ने स्टैंडर्डाइजेशन की हुई है। आपकी जो प्लांट ग्रोथ है 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7 डे, ये आपकी प्लांट ग्रोथ है। इमर्जिंग फ्रॉम डाइकोटिलेडोन स्टेज टू 2 to 3 लीफ स्टेज, ये आपके एक हफ्ते के अंदर में ये फोटोग्राफ अचीव करती है। See, this is a vertical farming system we have developed. My MTech student, she is working on it. ये हम लोगों ने ग्रो किया था। इसमें आप वीट ग्रास लगा सकते हो, जो मैंने कहा था, अगर if you are having 15 मीटर by 15 फीट by 15 फीट by 20 फीट एरिया, आप 4 से 6 लाख रुपए कमा सकते हो। वीट ग्रास इज वेरी कॉमन। Yesterday I shared the data with you. In Punjab, the cancer capital of India, in Punjab, Sangrur is highly concentrated area. In 2005, that was came in world map through WHO. Sangrur में उस समय 350% कैंसर पेशेंट इंक्रीज हुए थे in 5 year period. And उस दिन के बाद से आज तक संगरूर जो है वहाँ पे बना हुआ है, and the cancer patient number that is increasing from Sangrur to Amritsar India these days. Really, it's alarming one. एक ये नहीं है प्रॉब्लम, पंजाब में एक दूसरी प्रॉब्लम है, दैट इज रिलेटेड विद द थैलासीमिया। 3 रेंज है उसकी। थैलासीमिया मींस इज अ ब्लड एनीमिक, एंड दिस थैलासीमिया स्पेशली दैट इज रिलेटेड विद द गर्ल्स। ये मेल में डोमिनेंट नहीं है, गर्ल्स में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, एंड देयर आर ओनली 7 रिसर्च स्टेशन थ्रू आउट इंडिया, एंड CLC लुधियाना इज मेंट फॉर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आपको थैलासीमिया की number of patient every year it is increasing as the number of increase by the cancer patients, same way चल रहा है। उसके लिए आपको एक चीज है वीट ग्रास, आप उसके बारे में वीट ग्रास के ऊपर में आप देख लेना। मैं यहाँ पे आई एम नॉट एडवोकेटिंग, आई डोंट हैव एनी साइंटिफिक सपोर्ट कि मैं सपोर्ट करूँ कि आपको कैंसर को पीने से कैंसर ठीक हो ही जाएगा। आई एम नॉट टेलिंग दैट, आई एम नॉट एडवोकेटिंग, बट नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ पेपर आई हैव गॉन थ्रू इट। अगर आप कल के बोलोगे मेरे को तो मैं आपको जाके वहां से आप मेरे को ईमेल आईडी भेज देना, आई सपोर्ट माय क्लेम कि मैंने आई हैव गॉन थ्रू दोस पेपर्स। 1-2 नहीं है, 150-200 पेपर है मेरे पास में कलेक्टेड, एंड एवरीबडी हैज क्लेम्ड कि बाय टेकिंग व्हीट ग्रास उनको इम्प्रूवमेंट हुई है। व्हाई? बिकॉज इफ यू गोइंग थ्रू, अगर आपके पास में मोबाइल फोन इसमें चल रहा होगा,
molecular structure of wheat grass and molecular structure of blood अगर आप देखोगे, if you superimpose it, it is almost same. Only the center in one place in plant, the center is based on magnesium. In blood, the center is based on iron. Otherwise, all structure is same. All the bonds are same. That is why wheat grass is known as green blood. Another way. So this is how you can grow. See, आप ये जब आपके पास में चारी नहीं है, हरा भी नहीं है, आपके पास में सूखा भी नहीं है, आप अगर कोई केक्स वगैरह भी नहीं खरीद सकते, सिंपली गिव इट. एक उसको उठा के आप दे दो, इसको कुतरने की जरूरत नहीं है, मैन पावर की जरूरत नहीं है. जो भी इसके अंदर कर्नल्स हैं, देयर आर थ्री थिंग्स. वन इज बिगर, अनदर वन इज कर्नल, थर्ड वन इज रूट. एवरीथिंग इज पैलेटेबल. कुछ भी आपको काटने की जरूरत नहीं है, वो बहुत आराम से खाया जाता है उसको, बहुत इजीली. So this is how you can grow these things by using aeroponics and hydroponics. The third one is, as I told you, this is a fully controlled environment that is known as a plant factory. ये हमारे यहाँ लगी हुई है. इस समय की अभी just 2 दिन पहले की फोटोग्राफ है ये लेक्चर इस समय लगा हुआ है. And again, I'm telling you, if you are using plant factory, then you have to restrict with some leafy vegetables only. उसमें दूसरी चीज नहीं लगा सकते. But make it sure round the year 365 days you can get the same yield. कोई सीजन से कोई इफेक्ट नहीं है. You will get same thing, same yield every time. ये पैक जब फुल ग्रो करेगा, it will look like this. This is the backbone of the system. pH 5.5 to 6.5, EC 1.3 to 1.8. 2.8 is just leave it. Oxidation is required. यहाँ पे you have to understand this point. Why you have to understand that point? If you are taking care of the pH of the medium or soil, here is soil or some medium, 5.5 to 6.5, all the components, its demand is increasing. Some only P that demand increases 6.5 and it decreases like highly it has been decreased. But if you are talking about anything beyond the 6.5, most of the thing will not available, and especially the micronutrients, it is not going to available to the plant. That is the main thing. कि अगर आप pH ज़्यादा करोगे, आपको yield proper नहीं मिलने वाली है. And while you are designing the solution, there should be in your mind. And then bonds, the single bonds and double bonds. आपका water solubility that will get increased if the solution is having single bond और double bond होगा. तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में explain नहीं करूँगा, confusion करने की कोई बात नहीं है. ये researchers के लिए है. The single bond is always easy to get dissolved in the solution, and double bond it will take time, or chelated one, slow release, that will have a double bond. Another thing. When you are talking about the concentration of nutrient solution, remember the Hogland solution. You please write its name, Hogland solution, HOAGLAND, Hogland solution. That was devised somewhere in 1938 in Ohio State, America. Hogland solution. आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मोबाइल में सर्च कर लीजिए. And these are the things, NPK and all the macro and micronutrients. These are the quantity that is required, gram per liter. This is for stock solution. आप लोग 100 लीटर में इतना डाल दो ना, 100 लीटर में आपने मोल M1 M2 M लेना है. ये तो सिर्फ आपकी stock solution की बात कर रहा हूँ मैं. The stock solution then take 10%, 20% accordingly in different crop growing season. The Hogland solution है for NPK. Here you can see the elements NPK. For this NPK, KNO3, calcium nitrate, ammonium nitrate, magnesium sulfate. The number of things, the salts are available in the market to supply those elements. So what will be the quantity? This is C. Millimole, its a concentration is, molarity is there, micromoles, millimoles, calculation I have given, micromoles and millimoles. This is the step. How you can take
how you can calculate the molarity of the required solution. From this, it's a very easy. So rocket science नहीं है कोई. It's a very easy, but आपको बड़ा आपको molecular weight आपको पता होना चाहिए, आपको molarity पता होना चाहिए, आपको सबका एक एक चीज़ का हिसाब पता होना चाहिए, जो मेरा ख्याल है it's a part of 10th और 11th class. 8, 9, 10 से शुरू हो जाता है ये. कॉलेज लेवल का कोर्स नहीं है, 8, 9, 10 का कोर्स है. So अगर anything if you want to ask related with this, अगर अभी नहीं पॉसिबल है, you can ask me later. अभी से थोड़े समय में जितनी चीज मैं मैक्सिमम दे सकता हूँ, बाद में भी आप you can contact me. Aquaponics ये अपकमिंग फील्ड है, ये हमारा रिसर्च सेंटर इसमें था, इसमें this is called closed system. Aquaponics is called closed system. You cannot put anything from outside. अगर आपने कोई चीज डाली, अगर आपने इतना से फर्टिलाइजर डाल दिया, आपकी मच्छियाँ मर जाएंगी, आपका बूटा मर जाएगा. This is closed system totally. बाहर से कोई चीज नहीं आ सकती. ये हमारा क्लोज सिस्टम है. ये वाला टैंक जो इसके अंदर मछली है, यहाँ से पानी जो है निकल के साइफन के थ्रू 2 टैंक में आता है, वहाँ से ये न्यूट्रिफिकेशन टैंक में आता है. न्यूट्रिफिकेशन टैंक से पंप लगा है, ये न्यूट्रिफिकेशन टैंक से फिर ये दूसरे साइड में चले जाता है. ये आपका टैंक जहाँ से पानी साइफन के थ्रू आ रहा होता है, ये इसका टॉप व्यू और साइड व्यू है. दिस इज बायोफिल्टर है. बायोफिल्ट्रेशन यूनिट मीन्स यहाँ पे बैक्टीरिया जो है, आपके नाइट्राइट जो है, नाइट्रेट जो है नाइट्राइट में चेंज होते हैं. बैक्टीरिया सारे जो देख रहे हो आप बॉल्स हैं, इसके अंदर में सारे बैक्टीरिया इन्फेस्टेड बॉल्स हैं सारी. सो ये टैंक के थ्रू बायोफिल्ट्रेशन यूनिट में आता है, बायोफिल्ट्रेशन यूनिट से फिर आगे जाता है. ये पंपिंग सिस्टम है सारा, उसकी स्पेशलिटी दी हुई है. These are the fish we have grown, जो उसमें कल्टीवेशन है एक्वापॉनिक्स में. So this is upcoming field. ये लेट्यूस उसके थ्रू हुआ है. इसमें since we are not using anything, any fertilizer, so इसमें सिर्फ only और only vegetable, this leafy vegetable crop you can take. अब सर्दियों में जो हमारे यहाँ आपके यहाँ भी प्रॉब्लम आएगी कि फास्फोरस अपटेक और के अपटेक, ये इस समय में होगा नहीं ठंड में, तो आपके बूटे पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे. Winters itself. So ये तो सारे क्रॉप्स हो गए. See, this is orchid, how we have grown. मैं आपकी फोटो लास्ट टाइम आया था तो मैंने खींची थी जस्ट टू शो यू आपके इस कैंपस की है कि यू आर रियली ब्लेस्ड कि जो एनवायरनमेंट हम लोग मेंटेन कर रहे हैं बाय स्पेंडिंग 100 or thousands of rupees, it is freely available to you. Then why you are not thinking of getting money or getting return from by growing these crops? सिर्फ एक अकेली क्रॉप नहीं है वो. There are so many crops, the number of variety are there. सारी चीज़ें यहाँ पे आपके इजीली हो सकती है. ये आप अपने लिए, अभी आप मैं रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप अपने लिए घर में ट्रे में लगा के देख लेना. You just grow wheat grass and take for yourself. आपकी इम्यूनिटी से लेके everything will get enhanced. This is my appeal. That is in a chamber, wheat grass जो Open. देखो छोटी सी प्लेट में लगी हुई है. This open. हाइड्रोपोनिक्स के बारे में आप अगर और इंडिया लेवल पे जानना चाहते हो तो यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम भी है. यहाँ से आपके IRI में अभी आए हुए हैं डॉक्टर मुर्तजा, वो भी ही इज टेकिंग केयर ऑफ दिस सिस्टम. सो ये आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी एजेंसीज हैं. आप यहाँ पे जाके यू कैन गेट ट्रेनिंग ऑल्सो. हम लोग कुछ भी नहीं है बट यू कैन कम टू आवर प्लेस ऑल्सो. आई विल गिव. हम लोग इनसे अच्छी ट्रेनिंग देंगे, इनसे कम ट्रेनिंग नहीं देंगे आपको. बट वी आर नॉट रजिस्टर्ड, दैट इज सेपरेट थिंग. सो दिस इज माय एड्रेस. यू कैन पुट इट. You can send me mail. You can contact me. The number. This is WhatsApp number is there. कोई इंटरेस्टेड होगा आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर. So I had an opportunity to work in PFDC Ladakh also. I was initially posted in Ladakh ना सर. हाँ. So वहाँ पर भी हमारा PFDC सेटअप था. That's great. That's great. Thank you sir. So thank you very much for attending for the time.